Namaste and Jai Hind to everybody. Now, he doesn't often come to events, and when he comes, we would not let him go. We'd ask him some questions because his ministry, like somebody was just telling me, are कहते हैं ना घर में चिराग जलाने का काम करती है, एक राशन और दूसरा रोशनी. So that's why it's very critical. Prahlad ji, my first question, this is a white swan day, as many people say, 22nd of September 2025 with GST 2.0. Why do you believe this is landmark? So I would like to understand your perspective, from your perspective, why is it that this day is very important, especially from the consumer's point of view and from a nation point of view? Thank you, Anand. But first of all, I'm thankful that the first day when the GST 2.0 or 2.0, you are telling it according to my, it is, and the Prime Minister, it is next gen GST. And also, as far as a political science student, I can say this is the biggest ever reform after 77 years of independence, according to me. With full confidence at my command, I am telling you, this is the biggest reform. And why it is important? Why it is important means whatever the, as far as Consumer Affairs Minister, if I can tell you, whatever the consumers day to day they are using, that is either 0% or 5%. So if I can quote, I come from the South India, if I can quote an example, if I go to, whenever I visit Bangalore, I go to one hotel there, where dosa is done very well. तो वो डोसा के लिए हमको 20% टैक्स देना पड़ता था फॉर ओन डोसा. टुडे इट इज 0. ये बहुत सामान्य होटल है. उसमें तो जब वो रसीद देते थे हमको 20% मीन 100 रुपए डोसा है तो इसके लिए 20 रुपए हमको टैक्स देना पड़ता था. आज तो 0 है. अच्छे साउथ इंडियन कॉफी पीते हैं तो 20% जीएसटी था, 20% टैक्स था, ऑल पुट टुगेदर बिफोर टू जीएसटी एंड बिफोर टू दिस रिफॉर्म. टुडे इट इज 0%. And many of them, they are under 5%. So toothpaste and shampoo, soap, all those, they are in 5% range. Means common man is going to be benefited. And of course, either state government or central government, we are losing some revenue. Some states, especially opposition states, वो तो अभी रो रहे हैं, लेकिन रोना ही उनका काम है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन क्या है, जब जनता को इतने बड़ी मात्रा में सेविंग्स होता है, जन परचेजिंग पावर, उनका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़ता है. जब मार्केट में बिजनेस ज्यादा होता है, जब बिजनेस ज्यादा होता है, नेचुरली रेवेन्यू भी ज्यादा होता है. लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना है और पहले जनता को सुविधा देना चाहिए. ये तो मन से काम करना है. दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डन इट. ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स आपने कहा, पर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि नागरिक देवो भव. अब आपका दूसरा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. वो जो 20 रुपया कम हुआ है, वो बेनिफिट पास ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि या उसमें थोड़ा आपको समय लगेगा? क्योंकि आज पहले दिन कई जगह से फीडबैक आया सर कि नहीं हो रहा है. एक तो प्रधानमंत्री जी का एक विशेष गुण है, he has got a special quality, that is he believes in the citizens of country, he believes the people of the country, he believes the businessmen of this country, and we are trying to promote it, we are going to canvass it. But at the same time, वो भी बहुत ज्यादा कंपनियां आप देखे होंगे, तो कार वाले हो, छोटे छोटे, हमारा एक कर्नाटका मिल्क फेडरेशन है कर्नाटक के, वो सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है. It is the elected body. They immediately they have given the advertisement how much they are reducing. Like many companies, they have already given. So even Hindustan Lever, yeah, Unilever, they have also given the advertisement. That is one aspect of it. Second is GST में भी एक एंटी प्रॉफिटिंग एक विंग है. और एज ए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री we have established a helpline because generally consumer का complaint, though there are other authorities, like for example civil aviation में भी DGCA है, फिर भी कुछ हमारे पास आता है कंप्लेंट, क्योंकि कंज्यूमर एज सच मेनी अ टाइम दे फील दैट वी शुड गो टू द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री. सो वी हैव आल्सो मेड अप ए सिस्टम दैट प्री लिटिगेशन में ही हम तो कुछ हल करने का कोशिश करने के लिए
हमने ऑलरेडी किया है. So for that purpose, they are coming to us, and we have established a helpline. We are also monitoring, and as a prime ministry, line ministry, the finance ministry is also doing necessary follow-up, and we see to it that it is passed on to the consumers. तो जैसे आपने मदद किया था प्रयागराज के टाइम, कुंभ के टाइम, एयर प्राइसेस को कंट्रोल करने में आपने मदद की थी, डिफरेंशियल प्राइसिंग थी प्लेटफॉर्म्स पर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर भी आपने कुछ मदद की थी. तो यहाँ जीएसटी में भी डिस्पाइट नॉट बीइंग द लाइन मिनिस्ट्री आप हेल्प करेंगे? ना, लाइन मिनिस्ट्री तो वो है, लेकिन मैंने कहा ना, कंज्यूमरिज हमारा मंत्रालय का बेसिक काम है to take the interest and take the care of the consumers. Definitely we are going to do that. That's why we have established a helpline. But Mantri ji, why do you call it the biggest reform? You said, I put my word here, this is the biggest ever reform that Bharat has witnessed. Why do you say that? Now, why I have said is, probably everybody is so far, because now it has been announced 15 days back, everybody is aware. See, what used to happen, so many taxes, so many compliances. Abhi compliances bhi itna simple ho gaya, refund इतना सिंपल हो गया, और स्लैब ओनली 2 स्लैब. तो ये सब देखते हुए लोगों को, एक तो बिजनेस कम्युनिटी को भी लग रहा है कि ये कंप्लायंसेस भी इजी है, रिफंड भी अगर कुछ है तो रिफंड भी तुरंत आता है, रिफंड के लिए भी इसमें प्रोविजन है, और टैक्स स्लैब भी कम हो गया है. पहले तो जब आई कैन रिकलेक्ट, आई हैव इंडस्ट्री, इवन टुडे I am one of the director in that. I am a shareholder. छोटा कंपनी है, ठीक है, लेकिन मैं हूं. When I started the company, you cannot believe, because I come from a very humble background. वो एक एक्साइज इंस्पेक्टर करके इतना हमको तंग किया था, तो हमको पहले शुरुआत में ऐसे लगा क्यों हमने ये फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, ऐसे लग गया था. लेकिन आज तो सिस्टम इतना सिंपल हो गया है, और एक ही जीएसटी में, 2 ही स्लैब में पूरा आपका समस्या हल हो जाएगा, और आपका जो इनपुट क्रेडिट है वो सब तुरंत रिफंड आ जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपका जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स है दैट हैव बिकम इधर 0% और 5%. इससे राहत क्या चाहिए? पीपल आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. दैट्स वाई ये सब लोग क्यों रो रहे हैं, इतना दुख इनको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मोदी जी एक कभी कभी बीच में सिक्सर मार देते हैं, इनको तो वो तो समझने के लिए कुछ समय लगता है. दैट इज देयर प्रॉब्लम. But people are very happy about it, and we don't want to make politics out of it. But I can tell you, this is the biggest relief for the public. विपक्ष, especially the Congress is saying, हमने तो 8 साल पहले कहा था, अब आज कर रहे हैं, जो हमने तब कहा था अब आज कर रहे हैं. एक तो आज मैंने एक स्टेटमेंट देखा, शायद आप भी देखे होंगे. ये तो दिखावा है, ये तो बकवास है. आई वॉश, हाँ जी, हाँ, आई वॉश है. तो एक तरफ बोलते हैं आई वॉश है, दूसरी तरफ बोलते हैं हमने आइडिया दिया था. तो कम से कम पूरा क्लियर हो के आ जाओ, क्या कहना चाहते हो. यू कम आउट विथ व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस ओवरऑल रिफॉर्म. पहले तो कहा हम ही बोला था, तो यही लोग चाहते थे ना. आई वॉज देयर एज ए अपोजिशन एमपी ऑल्सो इन पार्लियामेंट. तो जीएसटी का जब ये लोग लाए थे, क्यों अपोज किया था? इनका जो उस टाइम के यूपीए था, आज का इंडिया है, वही पार्टी के लोग अपोज किया था. व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि उस टाइम सेंट्रल सेल टैक्स का एक इशू था, उसमें कॉम्पेंसेशन देना था. तो उसमें जो भी रिफंड करना था स्टेट को देना था, ये लोग नहीं दिया था. इसलिए यही इंडिया, यही यूपीए का लोग कहा आपके ऊपर हमको विश्वास नहीं है, हम जीएसटी नहीं चाहते हैं. लेकिन हमने जो जीएसटी के कॉम्पेंसेशन पर वादा किया था, वो कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने कानून में भी प्रावधान किया, और मोदी जी उसका पूरा पालन किया. इसलिए जीएसटी काउंसिल में अभी यूनानिमसली एक्सेप्ट होने के लिए कुछ लोग मन से करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो जनता के डर से करते हैं. दिस इज द डिफरेंस व्हाट आई कैन सी टुडे. ममता दीदी हैज आल्सो सेड दैट हेल्थ इंश्योरेंस पर हमने बोला था, इसीलिए हुआ है. ये कोई सरकार ने नहीं किया, हमारा आइडिया था. नहीं, आप तो पूरा तो मन से स्वागत करो ना. आपका आइडिया है तो कम से कम मन से स्वागत तो करो ना. वो भी नहीं कर रहे हैं ना. Why you are afraid of welcoming it? But did you know that this is going to happen, or was there an indication that this is going to happen in 15 days? Suddenly this announcement comes, and do you wonder कि मोदी जी ऐसे रिस्क क्यों लेते हैं? Does he have this appetite?
पॉलिटिकली बड़ा रिस्की काम है। देखिए, ये तो होने वाला है। ये तो वो क्या था, सरकार में क्या चर्चा चल रहा था पहले, ये तो मैं पब्लिक में अभी नहीं बोलता हूं। लेकिन मैं एक चीज तो कहता हूं, ये तो एक सप्ताह में, 15 दिन में, एक महीने में ये डिसीजन नहीं हो सकता है। वी शुड एग्री दैट देयर शुड बी लॉट ऑफ कंसल्टेशन। तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों से, हमको स्टेक होल्डर से भी कई बार चर्चा करना पड़ता है और इसके लिए तैयारी करना पड़ता है। वो तो बहुत दिनों से चल रहा था और प्राइम मिनिस्टर के मन में ये था कि हमने जीएसटी तो शुरू किया है, ये जीएसटी का बहुत अच्छे लाभ तो हुआ है जो 17 में हमने शुरू किया, लेकिन उसका जो स्लैब कम करना, कॉम्प्लायंसेस कम करना, दीज रियली ये पहुंचाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो डे टू डे यूज करने के लिए जो कंज्यूमेबल आइटम्स है, उसमें तो इधर 0 और 5% का करना है। मोदी जी के मन में पहले से ही था एंड दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड नाउ। What, according to you, in the last 11-12 years, are the top 5 reforms by Prime Minister Modi? One is, according to me, GST itself is the biggest reform. Second one is insolvency and bankruptcy. इसके कारण क्या हुआ है, बैंक में और ए असेट वगैरह के जो भी प्रॉब्लम चलता था पहले से, वो लगभग बहुत ही कंट्रोल में है। नहीं तो इवन अदरवाइज बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है, इन कंटिन्यूएशन विद द बैंकिंग रिफॉर्म, तो ऑल बैंक्स उस टाइम जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था इतना बहुत ज्यादा था, आज तो ऑल बैंक्स दे आर इन प्रॉफिट एंड एनपीए हैज कम डाउन लाइक एनीथिंग। दैट इज द सेकंड रिफॉर्म। एंड थर्ड इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ा एक बदलाव है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो। तो मैं जानता हूं जी, हमारा एयरपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एयरपोर्ट, ये तो एक एयर स्ट्रिप था। तो मोदी जी आने के बाद एयरपोर्ट फुल प्लेज्ड एयरपोर्ट हो गया और अभी 8-10 फ्लाइट ऑपरेट हो रहा है। और ऐसे 70 to 150 एयरपोर्ट्स, रोड में कितना बदलाव आया है, पोर्ट में कितना बदलाव आया है। और आज के दिन में मोदी जी बार बार हमको कहते हैं कॉम्प्लायंसेस कम करो और जो लॉजिस्टिक टाइम है वो टाइम कम करना। दिस इज दी अनदर बिगेस्ट रिफॉर्म। जनधन इज अनदर बिगेस्ट रिफॉर्म। जब प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बोला था कि आप अकाउंट ओपन करो, यही लोग मजाक उड़ाया था। पहले अकाउंट ओपन किया, बाद में आधार को लिंक किया, बाद में मोबाइल को लिंक किया। कितना बड़ा बदलाव आया जी। लगभग 4 लाख करोड़ सेविंग्स हो गया। जो हम डायरेक्टली डीबीटी करते हैं उसके कारण 4 लाख करोड़ का जो सेविंग्स हुआ, ये गरीब का कैसा बीच में कौन खाते थे, किसके जेब में जाते थे। ये तो सब जो बदलाव है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है एंड दीज रिफॉर्म्स आर बेनिफिटिंग द पीपल ऑफ द कंट्री। Let's talk about renewables, solar and wind. There's a huge thrust. That's also because the climate goals, we as a nation have to achieve a few climate goals. What kind of reforms are being pushed in the renewable energy sector, especially solar and wind? As it is, जो सोलर का और विंड का ओवरऑल रिन्यूएबल का है, इफ आई कैन पुट इट इन ए ओवरऑल जो इस 10-11 साल में हुआ है, if I can quote about that, what was the total solar energy in the country by when it was 2014? As far as I remember, and it is correct also, 2.4 gigawatt. Today it is nearly about 125 gigawatt. Another week, 15 days, it is going to reach 130 gigawatt. So from 2.4 to 130. And 75 gigawatt of the total from the non-fossil fuel source. Today, it is 252. 50% of our target of 2030 is being achieved. And installed capacity, जो प्रधानमंत्री पंचामृत के द्वारा COP26 में अनाउंस किया था, by 2030 we are going to
installed 50% of our energy from the non-fossil sources. It is achieved 5 years in advance, that is 2025 we have done it. And EU का एक delegation आया था, पूरा आप देखे होंगे, पूरा commissioner सब, all the commissioner सब आए थे. And Prime Minister told me to give a presentation to them. जब मैंने एक presentation दिया हमारा ऑफिस में, I had invited them to my office. They were stunned. 10 वर्ष में हो सकता है क्या? लेकिन तो बाकी तो मैं तो ऐसे क्या क्या हुआ है मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन ये तो फ्रॉम 2.4 to 130 इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. सेकंड थिंग इज मॉड्यूल. देश में स्वदेशी मॉड्यूल होता था क्या जी? अभी तो मॉड्यूल हो गया है. हाउ मच वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट? 24,000 crore. ये मोदी जी के अलावा और कोई रिस्क ले ही नहीं सकते जी. वी मेक इट विथ वायबिलिटी गैप फंडिंग. हमने पीएलआई में उनको दिया और उसके साथ अभी सेल का 25 गीगावाट 28 गीगावाट का हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और हमने एएलएमएम लागू किया है. 28 तक इसका शुरू हो जाएगा. और स्वदेशी इनगॉट और स्वदेशी वेफर, that we have already started. Trajectory is on, and I am quite confident we will come out with for that also with viability gap funding. And one more thing I want to tell you, wherever the viability gap funding that is in the form of PLI we have brought, that has brought down the per unit cost and overall investment by the cost of the unit has come down by 40%. This is the biggest achievement, and by that the cost of the electricity per unit when it comes down, overall हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है. So that is the biggest thing what has been done. I am very happy about it. And it is not only another thing, I am taking your little time. It is not just that only renewable energy emission or clean energy, ये तो ठीक है. But I have handled coal also. Yes. By handling the coal, I know little about thermal power. Thermal power ka, though we have good amount of coal, but overall problem is 6.5 rupees minimum aata hai per unit. But whereas with storage capacity, with wind, with pump storage, all put together in a hybrid model, we are giving at 4.5 per unit. So then what will be the difference? 2 rupees. 2 rupees difference is a big thing as far as manufacturing is concerned, because one of the major raw material in any manufacturing activities is the power. So this is adding to our overall reduction in the cost, and we are becoming viable in the global market. This is the biggest thing what we have done under the leadership of Prime Minister Shri Modi. But you say the renewable energy, we've met the targets 50% 5 years in advance. But last year, 2/3 of our generation was via fossil fuel power generation. So ये paradox थोड़ा समझाइए. ना paradox जो समझाने के लिए मैं इतना ही कहता हूँ, तो हमको रिन्यूएबल ऐड करना है. तो ऐसे तो हमारा बहुत ज्यादा ऐड हुआ है. आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, बट एट द सेम टाइम तो थर्मल तो बहुत बरसों से चल रहा है और हमको डे बाय डे आज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द कंट्री इज 495. Out of that 252 is the renewable energy. So we are adding minimum. Last time our addition was 33 gigawatt. Correct. This time I think it is going to be 44 or 45 gigawatt this year, current year what I am speaking. So day by day renewable energy is increasing. But पहले जो जीरो था 10 बरस में इस लेवल तक तो आया है ना, तो जीरो से अभी इधर तक पहुंचे हैं. मुझे विश्वास है और 10-15 वर्ष मोदी साहब रहेगा और हम तो वी विल सरपास वॉट एवर इट इज देयर इन दी फॉसिल फ्यूल से जो आता है उसको हम सरपास करेंगे. Well, let's hope that. But for that, कुछ प्रोजेक्ट्स जो अटके हैं उसको भी क्लियर करना जरूरी है. मंत्री जी, I'm given to understand that approximately 40 gigawatt of such RE capacity is lying unused due to lack of PPAs.
So what is the government going to do? Because DISCOMs are not coming forward to sign power purchase agreements. So what are you going to do there? With the other problem, there is one major problem. That is, one is ये जो प्राइस डाउन हो रहा है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं कल और कम होगा. दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. तो मैंने सब चीफ मिनिस्टर्स को भी कहा हूं, और मेरा सेक्रेटरी रेगुलरली ही इज इंटरेक्टिंग विद द चीफ सेक्रेटरीज एंड द एनर्जी सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट, एंड आई हैव मेट मेनी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स दैट अगर आप पीपीए नहीं करते हैं तो कम होता है. तो अभी जो करके अगर आप पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो नेचुरली आपके प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन आपके स्टेट में ज्यादा होगा. तो ये हम कन्विंस कर रहे हैं. रिलेटिवली उसमें तो थोड़ा कुछ प्रगति हुआ है, एंड फर्दर इसमें प्रगति होगा, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो टेकन इट वेरी सीरियसली. अनदर स्मॉल प्रॉब्लम इसमें है, रेगुलेटर लोग बहुत स्टेट में हो, सेंट्रल में हो, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हर्डल क्रिएट करते हैं. दैट आल्सो वी आर ट्राइंग टू हैंडल इट. The center-state coordination is something which is also an impediment. You touched upon it. Is that too much of an impediment? Are state governments putting too many roadblocks? Is the center not working with the state? देखिए, कई समझने में कुछ लोगों को लेट होता है. पहले जैसे आप अगर इफ यू कैन रिकलेक्ट, Prime Minister Modi has started this movement of renewable energy, especially solar, around 22 years back. Then the cost was around 17-18 rupees per unit. Yeah. But Modi ji did not stop, because he knew that after 20 years or 2 decades or so, the energy future is the renewable. So abhi log samajh rahe hain. For example, if I can quote, PM Kusum is for the agricultural. तो ये एग्रीकल्चरल में कोई भी आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने तो सबसे बातचीत करके उनको कन्विंस किया हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट नॉट ओनली फार्मर्स टू इवन टू द स्टेट एक्सचेकर. तो मैंने कई लोगों को हमारे ऑफिसर से एक प्रेजेंटेशन करवाया कि एक बार आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो अभी फ्री पावर देते हैं, एक ही बार आपका इन्वेस्टमेंट होता है, बाद में आप हर महीने हर बरस आप जो डिस्कॉम को पैसा देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से, वो बंद हो जाता है. यूर फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हेडेक है, वेदर इट इज फॉर द हाउस होल्ड और वेदर इट इज फॉर द एग्रीकल्चरल, दैट विल वंस फॉर ऑल स्टॉप. ये तो कन्विंस हो गया, काम भी शुरू हो गया. इस बीच में मैं अभिनंदन करना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने ये पीएम कुसुम का एक अच्छा मॉडल लाया, तो तब सबको लगा ये तो इसमें बहुत जादू कर सकते हैं. अभी तो हर मुख्यमंत्री आके मुझे मिलते हैं, हमको पीएम कुसुम अलॉटमेंट ज्यादा करो. तो मार्च में ये पीएम कुसुम अभी स्कीम पूरा हो रहा है, इट इज गोइंग टू एंड. बट नाउ आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, पीएम कुसुम 2.0 का आगे बढ़ाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है. बहुत मुख्यमंत्री भी अभी पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, काइंडली इसको एक्सटेंड करो. सो दैट नाउ तो कई लोग जल्दी समझते हैं लाइक प्रधानमंत्री मोदी जी, और कुछ लोग जल्दी नहीं समझते हैं. तो अभी समझने का थोड़ा उनके लेवल पर समझते हैं, लेकिन अभी बाय एंड लार्ज इंक्लूडिंग अपोजिशन स्टेट दे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. वन इज प्राइस, अनदर वन इज द बेसिकली दिस एमिशन, ऑल सच थिंग्स, एंड डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ना, कितना जॉब क्रिएट कर रहे हैं. 12 लाख 13 लाख ऑलरेडी हो गया है पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर में. सो पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन देयर विलेज, पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन देयर स्मॉल सिटीज, Tier 2 cities. So everybody is understanding the importance of this renewable energy, and by that this movement has picked up very well, and Prime Minister, because of his leadership, he has convinced many people. But Mantriji, when it comes to solar and wind, one of the aspects is to generate it we need land, and land acquisition is a problem is with a lot of renewable energy projects. उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो लैंड प्रॉब्लम सिर्फ रिन्यूएबल को नहीं है, लैंड प्रॉब्लम सबको है. तो इस बीच में हमको रास्ता निकालना है. तो ऐसे तो हम पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम में जो कर रहे हैं,
और पीएम सूर्यघर, इस टू डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन के कारण नियरली अबाउट 65 gigawatt we are going to generate out of that only. That is one point. Second point, पीएम कुसुम में जहां भी अगर फार्मर्स का कुछ लैंड है, उसमें कुछ एरिया में if they are not cultivating it, then we are requesting them to give it for the renewable energy, means solar energy. For that we are giving them rent. अभी मैं राजस्थान गया था. राजस्थान में मुझे फार्मर्स आके मिला, किसान लोग आके बोला, हम तो हमेशा मोदी जी के लिए हम बहुत ही वी आर ऑलवेज इंडेप्टेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी. मैंने बोला क्यों? हमारा तो बैरन लैंड है जी, लैंड हमारे नाम पे है लेकिन हम कुछ नहीं करते. अभी 30,000 रुपए हमको मिल रहे हैं बाड़े पे. सो दीज आर द थिंग्स, पीपल आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड. इवन सामान्य नागरिक, इनका 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ लैंड है, वो भी आगे आ रहा है. तो मुझे लगता है तो ये विन विन सिचुएशन है. दैट विल बी सॉल्व. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, whenever I am going for the meeting with Honorable Chief Minister, I am highlighting them that you have to work out with the farmers, with the public at large, and also wherever the government land is available, that you may kindly make it at least on lease basis, long lease basis for the private entrepreneurs, so that your energy problem and your energy cost and energy headache will be considerably reduced. This is, people are getting convinced now. That's why we are moving fast. This year we have, as I already told you, this year we have already added 23-24 gigawatt. जी. And this is the ever highest in a single year. And another 20-25 we are going to add this year. Oh, fantastic. Now you wear two hats. So हमने रोशनी की बात की, अब थोड़ा राशन की बात कर लेते हैं. 2-3 questions, sir. One is this one nation, one ration card. How is the implementation progressing, and especially with the migrant workforce and population? Is the implementation on track? Are you monitoring it? See, I can tell you one thing. One nation, one ration card. One nation, one grid. One nation, one subscription. ऐसे तो one nation जो मोदी साहब ने बोला है, ये सब one nation तो डर जाते हैं ये लोग. तो जब हम one nation, one ration card, जब इसका भी शुरू किया था, तब भी इसका क्रिटिसिज्म हुआ था. लेकिन 187 करोड़ ट्रांजैक्शन वन नेशन वन रेशन कार्ड में हुआ है. तो जो भी अगर समझो, मैं कर्नाटक से आता हूं, मैंने पहले भी जैसे कहा, बेंगलुरु में इतनी बड़ी मात्रा में अलग अलग राज्यों से लेबर्स है. दे आर ऑल अवेलिंग द फ्री रेशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में. तो हर व्यक्ति जो उधर आ रहा है, they are availing this facility of ration card, which is technologically driven. 100% ration card. ये डिजिटाइजेशन का जो मजाक उड़ाते थे ना, I am telling you today, 100% ration cards are digitized today. Wow. And 99% of the beneficiaries, they are Aadhaar linked and digitized. So things are changing, and that is the leadership of the Prime Minister Modi. Final question, back to GST. The passage of rate cuts. Is your ministry actively monitoring that this entire passage of rate cuts actually happens to the consumer? Because that's the big question. कि ये consumption boom लाएगा कि नहीं लाएगा, और इसका रिजल्ट आपको क्या लगता है? 30-40 दिन में दिखेगा? नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है. एक तो जनता भी अभी देखिए पहले जैसा उनको समझने के लिए है, क्योंकि न्यूज़पेपर या टीवी चैनल ऑफलेट टीवी चैनल पर डिपेंड होता था. आज स्थिति ऐसे नहीं है. हर दिन व्हाट्सएप में, हर दिन सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में चलता ही रहता है. सो मेनी पीपल दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया, एंड यू नो द नंबर ऑफ द वाईफाई कनेक्टिविटी इन द कंट्री टुडे. सो बाय दैट ऑल्सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, एंड द मेनी मैन्युफैक्चरर्स दे आर ऑल्सो they themselves, they are volunteering, they are giving advertisement. These are all the things happening. Otherwise also, finance ministry is monitoring. As a consumer affairs ministry, we are monitoring, and other line ministries, they will also monitor. I am quite confident on that. Thank you so much. Before telling that, one more thing I wanted to add. The impact of the reform on the renewable energy,
I am going to tell you one figure. You will be stunned. The investment overall, तो हमारा जो 18% था, जो आज 5% हुआ है, उस 5% में, do you know what is the savings? 1 lakh crore to 1.5 lakh crore. How? Wow. How I am telling you. We are yet to install till 2030 248 gigawatt because 252 we have already Correct. installed. 248 we have to install. For that 248 gigawatt to install, the overall savings per megawatt will be nearly about 25 lakhs. So that will overall it will bring down 1 lakh crore to 1.5 lakh crore in the country. तो यानी So आप कह this रहे is the Modi has given to the renewable energy and energy. हैं जो आरी पे है उनका बिजली होगा. हाँ, per unit cost भी कम, per unit cost reduced. Fantastic. But Mr. Devendra Fadnavis was telling yesterday that this year they are going to regulator to reduce the cost of the energy, not only for consumers, even to the industries. तो जीएसटी से रोशनी के बिल में भी बचत हो. हाँ, रोशनी ज्यादा होगा और बचत भी ज्यादा होगा. Mantri ji, I just want to use this opportunity to also commit to you and to our viewers that here at Network 18 we are not stopping with this reforms reloaded. What we are trying to also say कि अब भारत की बारी है. So we are I would like to use your good office and your permission to also unveil a new campaign, a mission that we are also going to move on. And I'm going to request Rahul to just please come here as we play out the AV here. It's called India Ab Bharat Ki Bari. And with your permission, I'd just like you to have a look at. Yeah, we'll display it there. Can we have the? यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है. कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे. असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है. विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा. तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो. जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए. गर्व से कहो, ये स्वदेशी है, तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा. इंडिया अब भारत की बारी. यही Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.